خبیب انصاری اس کا اچھا دوست اور کامیاب اینکر پرسن تھا اور اس کی وجہ شہرت اس کی آزادانہ صحافت ہی تھی۔ وہ بکاؤ صحافی نہیں تھا اور اونیئر وہ لوگوں کی عزت کی دھجیاں اتار دیا کرتا تھا اور ان کے کالے دھندے ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے رکھتا، اور ہماری عوام ان پر عام خبروں کی طرح ٹھنڈے تبصرے کر کے اللہ اللہ خیر صلاح کرتے۔ البتہ وہ عوام کو حقائق بتانے کا ذمہ دار تھا تاکہ وہ اپنی سوچ کو کچھ کام میں لائیں۔ روحان نے اس کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی تھی، لیکن 3 دن بعد اس کا اغوا روحان کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ خبیب کو کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ اسے نیوز چینل بند کرنے کے بدلے خبیب کی زندگی اور رہائی کی آفر دی گئی تھی، لیکن نیوز چینل اتنی آسانی سے بند نہیں ہو جاتے اور وہ نیوز چینل نہیں بند کر سکتا تھا۔ خبیب کو بھی کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس چینل سے کئی لوگوں کا روزگار وابستہ تھا، وہ سب ایک ہی موٹو پر کام کر رہے تھے: صداقت، امانت اور دیانت، لیکن بعد میں یہ تینوں اس کے لیے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے ملک کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اسے اتنی ہی زیادہ عزت ملے گی، جو جتنی زیادہ ایمانتوں میں خیانت کرتا رہے گا اس کا شجرہ اتنا ہی بلند ہوگا، جو جتنی زیادہ بددیانتی سے کام کرے گا اسی کا ہر طرف بول بالا ہوگا۔ لوگ جانتے بوجھتے بھی اپنی آزادانہ رائے نہیں رکھتے، کچھ دوسروں کے غلام بنتے اور کچھ دوسروں کو غلام بناتے ہیں۔ ہر شخص یہ بھول جاتا ہے کہ آقا غلام کا رشتہ وہاں ہوتا ہے جہاں جنگ و جدل کا نظام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو برابری کا نظام لایا جا رہا تھا اور کچھ لوگوں کو برابری اور مساوات پسند نہیں ہوتی۔ ان کی سوچ ہمیشہ گھٹیا رہتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی سوچ کو اپڈیٹ نہیں کر پاتے۔ ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ جو خبیب کے چینل نے کور کیا تھا: ہم ملک میں رونا روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن وہ فیکٹرز نہیں دیکھتے جو ان کا سبب ہے۔ ہم شور مچانے میں پیش ہوتے ہیں، لیکن حل دینے میں اور اپنے ملک کی بقا کے لیے حکومت کا ساتھ دینے میں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں کہ ملک میں انصاف نہیں ہے، پہلے انصاف دینے والوں کو تو صحیح کرو۔ لوگ ان بیچاروں کو کوڑی کے داموں خرید لیتے ہیں، پھر نہ وہ اللہ کی عدالت میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی ضمیر کی عدالت میں۔ ہم روتے ہیں حکومت ٹیکس لگاتی ہے، پھر آپ خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ اپنے ملک میں ہر چیز بنو پاکستانی، کھاؤ پیو، خود کو کیوں دوسرے ملکوں کی چیزوں پر پلنے دے رہے ہو؟ اپنے ملک کے کسانوں کو ریلیف دو اور خوشحالی سے کھاؤ۔ ہم جانتے ہیں سیاستدان، حکمران، امراء کرپشن کرتے ہیں، پھر تم کیوں ان کے گناہوں پر پردے ڈالتے ہو؟ تم کیوں انہیں کرپشن کرنے دیتے ہو؟ تم اپنے پیسے کی خود حفاظت نہیں کرتے۔ جب کہتے ہیں حکمرانوں کا احتساب ہوگا تو تم سب ہی سیاستدانوں کی ڈھال بن جاتے ہو۔ نہیں جی، ہمارے لیڈر کو کچھ نہ کہیں، اللہ لوکی ہے اور تم لوگوں کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے۔ اپنی مہنگائی کے لیے نکلتے نہیں ہو اور ان کے سیاسی لیڈر کو پروٹوکول میں عدالت لے جایا جائے تو سب اس کے لیے مظاہرے کر لیتے ہو، راستے بلاک کر دیتے ہو۔ مدینہ کی ریاست بنانا صرف ایک شخص کا کام نہیں ہوتا، عوام کو بھی ملک کے اداروں کے شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اسلامی قانون تک کو تو تم لوگ فالو نہیں کرتے۔ میری جان، ہمیں ملک بہت قربانیوں اور جانوں کے نذرانے کے بعد ملا ہے، اسے سنبھالو، اسے نکھارو، اسے مثال بناؤ۔ خود کو ان لوگوں کے لیے مرنے کے لیے پیش کر دینا جیسے آج تک دیکھا نہیں، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، آسان ہوتا ہے کیا؟ اور ہم ان سب شہیدوں کی قربانیوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی ہے، الحمدللہ، اس لیے ہمیں کیا معلوم غلامی میں انسان کیسا ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہمارے بزرگوں نے کن کن کٹھن حالات کا سامنا کیا۔ ہم تاریخ کو صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیدائش تک جانتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ یاد ہوگا کہ ملک کس دن وجود میں آیا اور کس کے پیچھے دی جانے والی قربانیوں کو پڑھ کر سمجھنا تو دور، ہمیں تو تاریخ اور جغرافیہ نہایت بورنگ مضمون لگتے ہیں، جو ہمارے نزدیک ہمیں مستقبل میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس دن ملک میں حالات کافی کشیدہ تھے اور عام عوام سڑکوں پر مظاہرے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا تھا، اور روحان اس دن اپنی اسی عوام پر مشتعل تھا جس کے لیے وہ کولوں کا بیل بنا ہوا تھا۔ ہم سب مل کے ان مسائل کا حل نکالتے ہیں، اور وہ مسائل جن کی وجوہات سے ہم آگاہ ہیں، لیکن ہمیں وہ جذبے نہیں ہیں جو محمد بن قاسم اور سلطان غزنوی جیسے لوگوں میں ہوتے ہیں۔
हमें टिकटॉक और पबजी में अपनी कुल कायनात नजर आती है। आजकल कोई मुझ पर गालियों की बौछार भी कर दे तो मुझे परवाह नहीं है। क्या यही मकसद है हम लोगों की तख्लीक का? जब आपको सब कुछ एक तशरीह में रख कर मिल जाता है तो आप मेहनत करना गुनाह समझते हैं, और ये जिंदा कौमों का शेवा नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, एक आयत का मफहूम है कि जब हालात साजगार हो जाएं तो कौमें माठी हो जाती हैं। हमारे मुल्ला का भी बेड़ा चंद लोगों ने उठाया हुआ है, और फिर जब वो इसने अपना कमीशन निकालते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस का सामना करते हैं। मैं जुर्म करने वालों को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद दुआ मांग रहा था, अपने लिए आसानियाँ और खबीब अंसारी की सलामती मांग रहा था। वो जैसा भी था, जहाँ भी होता, नमाज 5 वक्त की पढ़ता था। जो फ़र्ज़ है वो नहीं छोड़ सकता, चाहे ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब हो। इसकी गाड़ी में, इसके ऑफिस में, हर जगह प्रेयर मैट ज़रूर मौजूद होता था। सफ़र में होता तो कहीं भी वज़ू करके नमाज पढ़ लेता, और अगर ऑफिस में होता तो मसला ही नहीं था। उसने अब आयान सिकंदर को सब कुछ बता दिया था, और वो आयान सही मानों में परेशान हुआ था। अगर वो समझ रहा था कि इसके घर वाले इसके बगैर जीना सीख जाएंगे तो वो गलत था। रूहान समेत सबको आज भी इसकी ज़रूरत और इसकी कमी महसूस होती थी, लेकिन उसका वापस आने का इरादा कतई तौर पे ना था। अलबत्ता मौजूदा हालात में रूहान ने इससे मदद मांगी थी। आयान ने आर्मी के ही चंद लोगों के जरिए रूहान को मदद दिलवाई थी और खबीब अंसारी को ढूंढने के लिए एक खुफिया टीम तश्कील दी थी। जिस नंबर से कॉल और मैसेज आए थे वो सनाउल्लाह के जरिए हैक करवा रहे थे। वो और काफ़ी पेशकदमियाँ कर चुके थे। पुलिस फोर्स भी काम कर रही थी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता था। अब तो ये बात मीडिया तक पहुंच गई थी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो थी, लेकिन वो खबीब को किसी भी नुकसान से बचाना चाहता था। अब वो दुआगो था कि अगवाकारों को इनकी खुफिया फोर्स के बारे में पता न चले और खबीब अंसारी से ही सलामत हो। मगर न्यूज़ चैनल को तो जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए खबर मिल गई थी, और इनके चैनल्स पर भी मामूल का काम जारी था। लेकिन सब बहुत परेशान थे। वो अपने ऑफिस से सनाउल्लाह के घर जाने के लिए निकल रहा था कि सामने से मोमल आती नजर आई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहीं जा रहे हैं? मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, पर खबीब के केस में आपकी मदद कर सकती हूँ। ये मोमल थी जो कि रूहान की टीम का हिस्सा होने के साथ साथ एक काबिल वकील भी थी। उसने रूहान को पुरखुलूस अंदाज में ऑफ़र पेश की। वो जानता था कि अभी चंद दिनों में इसे वकील और फिर काबिल एतमाद वकील की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मीडिया वालों ने रूहान सिकंदर को खबीब की किडनैपिंग का जिम्मेदार करार दिया था। और फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि सब मिलकर इसके मीडिया ट्रायल के लिए कोर्ट में इसके खिलाफ दरख्वास्तें देने लगे। अदालत ने कार्रवाई का हुक्म दिया था और रूहान ने साकिब सिकंदर के असर रसूख से फिलहाल इस तरफ से जान छुड़वाई हुई थी। पहली तरजीह खबीब को सही सलामत वापस लाना था, बाकी सब बाद में देख लेते। हमारे मुल्क में इन लोगों पर इतने केसेस नहीं होते जिन्होंने वाकई कुछ गलत किया होता है। इन लोगों पर ज़्यादा केसेस होते हैं जो बेकसूर होते हैं। रूहान ने 1 माह पहले अपने सारे वर्कर्स को इकट्ठा करके इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलवाई थी, जिनमें इसने तमाम लोगों पर आने वाले खतरात का खदशा जाहिर किया था और इन खतरात की आखिरी हद तक वो बहुत अच्छा नक्शा खींचकर बताया था। अपने साथ काम करने के मुमकिन नताइज का भी बताया था। आखिर में सबको फ्री हैंड दिया था, चाहे तो इसे छोड़ जाएं, चाहे तो इसके साथ काम करते रहें, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी खतरे में डालने का रवादार नहीं था। हैरत अंगेज तौर पर इसे कोई भी छोड़कर नहीं गया था और सब ने ज़िंदगी मौत का फैसला अल्लाह पर छोड़ा था, और ये इसके लिए खुशगवार मौका था। बहुत शुक्रिया मोमल। एकेडमी कैसी चल रही है? उसने बात बदली। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो इसे 5 साल बड़ी थी, लेकिन इसे सर कहती थी, क्योंकि रूहान के अंडर काम करने वाले सब लोग इसे सर या बॉस कहकर ही पुकारते थे। गुड जॉब। कितने दिनों तक न्यू टाइगर्स तैयार हो रहे हैं? 3 से 6 माह तक, इसने खुश दिली से बताया। मैं आपकी तरह प्रोग्रेस चेक करने आऊँगा। मेरे लिए अच्छा सा डिनर तैयार रखिएगा। यू आर मोर वेलकम सर। इससे चंद एक बातें करके इसे अंदर जाने का कहा और अपने रास्ते हो लिया। इसके पहले 50 मेंबर्स DOP में किसी भी वक्त आ सकते थे और वो सब एक दूसरे के साथ अपने विजन और नए आइडियाज़ शेयर करते रहते थे। मोमल लोगों की हमदर्द और ईमानदार वकला की फोर्स बना रही थी। ऐसे लोगों के लिए जो महंगे वकला अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो सब रूहान से मोटिवेट थे और आगे इसी रोशनी को फैला रहे थे। रूहान को वाकई मोमल जैसी काबिल वकील की ज़रूरत पड़नी थी।
और यकीनी तौर पे मोमिल इसका केस बगैर किसी फीस के लड़ती। वो एक हफ्ते से एक हबीब केस में फंसा हुआ था और इस सारे वक्त में वो अलीज़ा को फरामोश ना कर सका था और उससे मिलने भी ना जा सका था। गाड़ी ड्राइव करते इसके फ़ोन पर एलिज़ा कॉलिंग जगमगाता नजर आया। इसका नंबर देखकर होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। कहाँ हो? कोई सलाम दुआ और दुआए कलिमात की बजाय उसने सीधा सीधा इससे इस्तफसार किया तो रूहान हैरान रह गया कि वो अभी भी नाराज़ थी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उसने अच्छे अंदाज में पूछा। रूहान, कहाँ हो? इस्लामाबाद में हूँ। वो भी संजीदा हो गया। हम अभी मिल सकते हैं? उसने पूछा तो रूहान को खतरे का एहसास हुआ। कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम फ्री हो तो मेरे फ्लैट पर आ जाओ। इससे पहले वो कुछ पूछता, अलीज़ा ने फ़ोन बंद कर दिया। इससे पहले अलीज़ा ने कभी इससे ऐसी बात नहीं की थी। इसके अंदाज में सर्द महरी थी और रूहान को झटका ज़रूर लगा था। वो इससे बड़ा झटका इसका इंतज़ार कर रहा था। सनाउल्लाह को एक ज़रूरी काम का बोलकर इसने कुछ देर से आने की बाबत बताया और गाड़ी अलीज़ा के फ्लैट वाली सड़क पर डाल दी। अलीज़ा का घर मीरपुर में था, लेकिन वो पढ़ने के लिए इस्लामाबाद में रहती थी। इकलौती थी, इसलिए इसके वालिद ने इसे हॉस्टल की बजाय एक फ्लैट खरीद कर दिया हुआ था और वहाँ इसके साथ एक बुआ थी जिसके खाने वगैरह बनाने के लिए और सफाई के लिए थी। पिछले चंद सालों से किंजा भी इसके साथ रह रही थी। फ्लैट की बेल बजाकर वो बाहर खड़ा दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। अलीज़ा को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा खोला गया तो रूहान यकदम संजीदा हो गया और चेहरा बेतासुर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीज़ा को बुला दे, मुझे कहीं जाना है। किंजा की मौजूदगी में वो अलीज़ा से बात नहीं कर सकता था। किंजा ने जवाब देने के बजाय दरवाजे से हटकर इसे रास्ता दिया। कुछ देर खड़ा रहा और फिर अंदर गया। चारों तरफ अलीज़ा के लिए नजरें दौड़ाई, लेकिन वो नजर ना आई। अलीज़ा कहाँ है? उसने पूछा। बैठ जाओ रूहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपसे मिलने नहीं आया, अलीज़ा को बुला दें। वो दो टोक अंदाज में कहकर खड़े खड़े अपने फ़ोन पर लग गया। किंजा इसके करीब आई। क्या? उसने नज़र उठाकर सवाल किया। तुम्हारा कुछ सामान अलीज़ा मुझे देकर गई थी कि मैं तुम्हें वापस कर दूं। वेट वेट वेट, कहाँ गई है वो? मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। व्हाट? क्यों नहीं बता सकती? वो चिल्लाया। अलीज़ा ने मना किया है। सीरियसली? वो इस्तेहज़ाया अलहसा। और क्या दिया है अलीज़ा ने मेरे लिए? वो इस नाराज़गी की हद देखना चाहता था। किंजा सर हिलाकर एक कमरे में चली गई। वो इर्द गिर्द देखते हुए बेजार नजर आ रहा था। आज से पहले ये फ्लैट इतना खाली और खामोश नहीं लगा था। वो कोई कार्ड, गिफ्ट या गिफ्ट टाइप की चीज़ तवक्को कर रहा था, लेकिन जो चीज़ किंजा लेकर आई थी उसने रूहान के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। अलीज़ा ने तुमसे मंगनी तोड़ दी है। अंगूठी रूहान के सामने करते उसने धीमी आवाज़ में कहा। रूहान ने बेयकीनी से इसके हाथ से अंगूठी ली। वो अजीब कैफियत का शिकार होते हुए इसे देखे गया। अंगूठी थामते हुए इसके हाथ कांपे, जिसमें एक सितारे की मानिंद नीला डायमंड जगमगा रहा था। क्या बकवास कर रही हो किंजा बीबी? वो जोर का धारा। मैं सच कह रही हूँ रूहान। वो कहते हुए आगे हुई तो रूहान लम भींचते हुए पीछे हुआ। वहीं खड़ी रहकर बात करो। वो इतने सख्त लहजे में बोला कि किंजा वहीं रुक गई। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन वो कहाँ गई है अलीज़ा? इसकी बात काट कर वो मुश्ताइल सा बोला। एंगेजमेंट रिंग इसके हाथ में थी, जो इन दोनों की मुश्तरका पसंद थी, जिसके लिए उन्होंने एक दिन ज़ाया किया था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की शायान शान कोई रिंग मिल ही नहीं रही थी। वो दिन यादगार दोनों में से था। अब शायद यादगार ही रहता, अच्छे वक्तों की याद। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती रूहान। इसने मेरे सामने इतराफ़ किया है। देखो, वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आ गई हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। यहाँ इंडियन ड्रामे की शूटिंग नहीं चल रही। जो पूछा है उसका जवाब दो। वो सीख पा होते हुए बोला। अब वो ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहा था, आखिर अलीज़ा ने ऐसा क्यों किया होगा। वो तुम्हें छोड़कर चली गई है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अलीज़ा कहाँ गई है। तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? तुमने उसे गलत मशवरा दिया है। वो आंखें निकालकर चीखता इसकी तरफ बढ़ा और किंजा डर कर पीछे हटी। वो दूध पीती बच्ची नहीं है, वो सहम कर बोली। वो लोगों की मोहब्बत में अंधी जरूर है। वो गुस्से से कहता अपना रुख मोड़ गया। वो कभी भी अपना गुस्सा किसी औरत पर नहीं उतार सकता, लेकिन जिस कदर गुस्सा उसे अलीज़ा पे आ रहा था, अगर वो सामने होती तो रूहान से ना बख्शता। अगर वो मुझे तुम्हारे लिए छोड़कर गई है तो उसे कह देना, मैं कभी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा।
اس کی قربانی اسے ہی مبارک ہو۔ کیا مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ اگر محبت نہیں کرتی، جو بھی جذبہ رکھتی ہے آ کر میرے سامنے اعتراف کرے۔ ایسے بزدلوں کی طرح چھپ کر مت بیٹھے، کیونکہ روحان سکندر لوگوں کو قید کرنے کا روادار نہیں ہے۔ میں نے زبردستی اسے اس رشتے سے نہیں باندھا تھا، اور تم دوبارہ میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا، مار دوں گا تمہیں، فسادی عورت۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ کھلی فضا میں آج گھٹن ہو رہی تھی، جاتی سردیوں میں سخت حبس محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اتنا بھی احسان مند نہ ہو علیزہ درانی کہ اپنی محبت کی قربانی دے دے۔ میں تم سے زیادہ بے وقوف نکلا۔ اپنی گاڑی کو ٹھوکر مار کر وہ بڑبڑایا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے دروازہ زور کا بند کیا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ گاڑی میں بھی نصرت فتح علی خان کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے غصے سے اسٹریو کا والیوم بند کر دیا۔ وہ محبت کے غم لینے والا بندہ نہیں تھا، لیکن اسے علیزے کی بے وفائی پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ علیزے سے محبت کرتا ہے، اور یہ احساس خطرناک تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے وہ خبیب انصاری کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ وہ بھولا ہی رہتا اگر ثناء اللہ سے فون کر کے اغوا کاروں کی لوکیشن کے بارے میں نہ بتاتا۔ وہ اسے آنے کا کہہ کر فون بند کر گیا، بہت مشکل سے خود کو نارمل کیا اور ثناء اللہ کی بتائی گئی جگہ پر چلا گیا۔ وہاں وہ ٹیم پہلے سے ہی موجود تھی جو ایان نے خفیہ آپریشن کے لیے اسے میسر کی تھی، اور اس میں کچھ آرمی کے بندے بھی تھے۔ پولیس کا ہر بڑھتا قدم میڈیا پہ دیکھا جاتا تھا، اور ایسے میں وہ پینک ہو کر خبیب کو مار بھی سکتے تھے۔ سارا پلان انہوں نے 2 گھنٹے میں مرتب کیا اور ان لوگوں کو روانہ کیا۔ وہ غائب دماغی سے ان لوگوں کی ساری پیش قدمیاں دیکھتا رہا، اور اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے ثناء اللہ سے کتنی مرتبہ کافی بنوا کر پی تھی۔ زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے وہ راستے فلیٹ وائٹ ہی پی رہا تھا۔ فلیٹ وائٹ کافی کی وہ قسم ہے جس میں کافی پاؤڈر زیادہ اور دودھ بہت کم ڈالا جاتا ہے۔ اس نے ساری رات جا کر گزاری تھی، اور وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتا رہا۔ ثناء اللہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، لیکن وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ اس نے خود نہیں پوچھا، کیونکہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، لیکن خبیب کے مل جانے کے بعد پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح 5 بجے جب وہ اسے پھر سے کافی دینے آیا تو اس نے دیکھا روحان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے دنیا مافیا سے بے خبر تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا جب اس نے روحان سکندر کو روتے دیکھا تھا۔ وہ لب بھینچ کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنکھیں پھر آنسوؤں سے تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پر وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا، پلک تک نہیں جھپکا رہا تھا۔ ثناء اللہ جتنا پریشان ہوا اتنا ہی شاکڈ ہوا۔ روحان نہیں جانتا تھا کہ ثناء اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ورنہ وہ کہہ دیتا آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ لیکن ثناء اللہ دیکھ چکا تھا آنکھوں میں کچھ نہیں گیا تھا، لیکن دل سے کچھ نکل ضرور گیا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے لیکن روحان ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ ثناء اللہ کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے پریشانی ہوئی۔ روحان ساری رات سے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اور اب تک تو جسم بھی اکڑ چکا ہوگا۔ فون بجا تو وہ چونکا، ارد گرد دیکھا کہ فون ڈھونڈے تو ثناء اللہ کو سامنے کھڑا پایا تو مسکرایا۔ ڈیم اٹ! اس نے خود کو کوسا۔ فون اٹھا کر کھڑکی کی طرف چلا گیا تاکہ خود کو نارمل کر سکے۔ سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگا کر سننے لگا۔ الحمدللہ! اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ گڈ ورک عامر، اور بہت شکریہ یار۔ ساتھ ہی اس نے سراہا۔ خبیب سے بات کرواؤ۔ ثناء اللہ فوراً اس تک آیا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ خبیب ٹھیک ہے۔ روحان نے آل گڈ کا اشارہ دیا تو اس کے چہرے پہ بھی سکون اترا۔ کیسا تجربہ رہا خبیب؟ کتنے گھونسے اور لاتیں کھائی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ دراصل میں لڑائی کرانے والا بندہ تو ہوں نہیں، صرف ایک مرتبہ بولا تھا تو کانوں سے دھواں نکلنے والا تھپڑ پڑا۔ اب ایک پڑایا 3 بات ایک ہی ہے۔ پھر میں خاموش ہی رہا تو ان سالوں نے بھی مجھ سے پنگا نہیں لیا۔ خبیب مار کا سرد کرنے والے انداز میں بولا، اور صحافی اتنے نڈر تو ہوتے ہی ہیں۔ روحان نے فون سپیکر پر ڈالا۔ مجھے تو یقین تھا کہ ہمارے جرنلسٹ کو 3 سے 4 گولیاں مار ہی دیں گے۔ افسوس کرائے کہ اغوا کاروں نے ایسا نہیں کیا۔ اگلی مرتبہ کرائے کے قاتل بھیجیے گا۔ اس کے طنز پر روحان ہنسا۔ تم نے مجھے خوب بدنام کر لیا ہے۔
आप बदनाम हुए? सीरियसली? आए पॉलिटिक्स करते हैं, आपने मुझे अगवा करवाया। रूहान सिकंदर ने अपने ही चैनल के होनहार निडर बहादुर जंगजू को अगवा करने का घटिया काम किया। कैसा? खबीब की आवाज़ में बशार से वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो ठीक है। वो इन तीनों के दरमियान खासी बेतकल्फ़ी थी, इसलिए वो ऐसे बात कर लिया करते थे। और अगली मर्तबा खुद कत्ल का इरादा रखता है। मुझे आपसे मिलना है, वक्त नहीं है, उसने लापरवाही से कहा। मेरे लिए वक्त नहीं है? क्यों? कौन सी हसीना के साथ डेट मार रहे हैं? खबीब ने पूछा। सनाउल्लाह के साथ, कसम से कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है। अच्छा, बस ध्यान रखिएगा कॉफ़ी पिलाते पिलाते कोई जहर ना दे ले। और आपको पता भी नहीं, जहाँ कॉफ़ी ऑफर हो रही हो शहद की मक्खी बन जाते हैं। और एक अच्छी कॉफ़ी वाले से कहीं मेरा कप भी तैयार रखें। हाय, अंग अंग में दर्द हो रहा है। वो मामूल के अंदाज में बात कर रहा था, जैसे कहीं रास्ते में हो और उनसे मिलने आ रहा हो। आखिर में कराह कर बोला तो वो हंसा। आ जाओ खबीब, तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफ़ी बनाता हूँ। डिस्प्यूटेड किला फतह करके आ रहे हो? सनाउल्लाह ने कहा। सर जी, आपके हाथों की कॉफ़ी को तो क्या जहर भी पी लेंगे। इसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो अभी मौत के मुंह से वापस आया है। तुम फिक्र मत करो, चीनी की जगह जहर मिलाऊंगा, सनाउल्लाह ने कहा। बहुत जल्दी है आप दोनों को मुझे मारने की। एक अगवा करता है और दूसरा जहर देने की धमकियाँ देता है। बेटा, आज ही मीडिया ट्रायल शुरू करवाऊंगा। वो सब ऐसे ही थे, एक दूसरे की इज्जत पहले करते थे, बाकी काम बाद में। सबकी उम्रों में चंद बरसों का फ़र्क था, लेकिन वो वाकई एक मिसाली टीम थी। क्योंकि टीम का लीडर रूहान सिकंदर था। खबीब से बात होने के बाद उसने सनाउल्लाह को मुबारकबाद दी और फजर के लिए वज़ू करने चल दिया। सनाउल्लाह ने इससे पूछने का इरादा किया था, क्योंकि वो दुख को तो खुद तक रखने से वो आपको अंदर से ख़त्म कर देता है। वो 5 मिनट बाद वज़ू करके आया और अपना सेल ऑफ कर दिया। रूहान, कोई मसला है? सनाउल्लाह ने पूछा। रूहान जानता था कि वो किस बारे में पूछना चाह रहा है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा था। कम से कम वो अलीज़ा को अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं कर सकता था। नहीं, बस खबीब के लिए परेशान था। अब पुरसुकून हूँ। खबीब के लिए पिछले कई दिनों से तुम परेशान थे, लेकिन मौजूदा परेशानी की नोयत अलग है। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। सनाउल्लाह ने इसे हौसला दिया तो वो मुस्कुराया। कुछ खास नहीं, फैमिली इशू है। जब मैं फारिग हो जाऊंगा तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। उसने उसके कंधों पर हाथ रखते उससे नजरें चुराते हुए वो अपना फैलाया हुआ सामान समेटने लगा। मैं कर देता हूँ, तुम नमाज पढ़ लो। वो सर हिलाते ड्राइंग रूम में एक तरफ जयनमाज बिछाने लगा। सनाउल्लाह ने तासुब से इसे देखा। वो अपनी परेशानी किसी को भी नहीं बताता था और वो ये जानता था कि रूहान इसे भी कुछ नहीं बताएगा। तुम पूछो और मैं ना बताऊँ, ऐसे तो हालात नहीं। एक ज़र्रा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। किसको खबर थी सामने बादल बन बरसे उड़ जाते। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। टूट गया जब दिल तो फिर ये सांस का नगमा क्या माना। गूंज रही है क्यों शहनाई जब कोई बारात नहीं। गम के अंधियारे में तुझको अपना साथी क्यों समझूं। तू फिर तो तू है, मेरा तो साया भी मेरे साथ नहीं। माना जीवन में औरत एक बार मोहब्बत करती है, लेकिन मुझको तो ये बता दे, क्या तू औरत ज़ात नहीं। ख़त्म हुआ मेरा अफसाना, अब ये आंसू पूंछ मिलो। जिसमें कोई तारा चमके, आज की रात वो रात नहीं। मेरे गमगीन होने पर अहबाब यूं है हैरान, जैसे मैं पत्थर हूँ, मेरे सीने में जज्बात नहीं। हज़रत ईसा से पूछा किसी ने जो था होशियार, इस हस्ती में चीज़ क्या है सबसे ज़्यादा दुश्वार। बोले ईसा के सबसे दुश्वार गुस्सा खुदा का है प्यारे, कि जहन्नुम भी लरसती है इनके डर के मारे। पूछा कि खुदा के इस कहर से जहाँ कैसे बचाएं। वो बोले अपने गुस्से से इसी पल निजात पाएं। वो कार माइंजर रेस्टोरेंट में बैठा इस कदर स्पैगेटीज और चॉकलेट पुडिंग एंजॉय करते हुए मार का इंतज़ार कर रहा था। अकेले खाना इसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा था। ये वक्त वो एंजॉय करने लगा था। आर्मी ने इतना ट्रेन कर दिया था कि वो खुद को हर वक्त पानी की मछली समझने लगा था। आजकल वो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद था, क्योंकि तमाम ममालिक की मुश्तरका एयर फोर्सेस की ट्रेनिंग हो रही थी और वो इसके कोरियन दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। सफ़ेद हाइकिंग शर्ट और नीली जीन्स पर भूरे रंग का ओवरकोट पहने वो अमरीकी शहरी लग रहा था। अमेरिका इसकी और रूहान की बर्थ प्लेस था, इसलिए वो लोग इसे ऐसे भी
वैसे भी अजीज़ था, इसलिए वो मुल्क इसे वैसे भी अजीज़ था। कार माइंजर रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में इसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में से था, क्योंकि एक तो वहाँ फैमिली वाला माहौल मिलता था, नहायत उम्दा इटालियन खाना मिलता था। वो टाइम स्क्वायर तक जब भी आता, वहाँ से आगे इस जगह पर ज़रूर आता। अब तो जैसे वहाँ के वेटर्स और वर्कर्स भी इसे जानने लगे थे। वेटर्स को बुलाकर अभी वो कुछ मज़ीद ऑर्डर करने लगा था कि गिलास वॉल धकेल कर अंदर दाखिल एलिजा पर नज़र पड़ी तो वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हुआ। एक लम्हे के लिए खाने से हाथ रोककर वो इसे देखने लगा, क्योंकि वो काफ़ी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी थी और अमेरिका इसकी गुड लिस्ट में कभी शामिल नहीं रहा था और वो यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी। दूसरी बात, इसे रूहान और एलिजा ने कुछ भी नहीं बताया था, तो इनके बारे में अभी कुछ नहीं जानता था। एलिजा दूसरी जानिब शीशे के करीब ही बैठ गई। कुछ देर वो बाहर गिरती बर्फ़ देखती रही, फिर सर झटक कर वेटर को इशारा किया। मार्क अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो अपनी प्लेट उठाकर एलिजा की टेबल की तरफ गया, जो अब लैपटॉप सेट करके बैठ गई थी। शायद कोई काम कर रही थी। अपने मखसूस अंदाज में सीटी बजाता उसके सामने खड़ा हुआ। एलिजा ने सर उठाकर हैरत से इसे देखा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। कट्टर पाकिस्तानी आज अमेरिका में क्या कर रहे हैं? वो ढब से इसके सामने बैठे हुए बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक अयान सिकंदर कोरिया में था। एलिजा भी हैरान हुई और खुश होते हुए बोली, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके सवाल पर एलिजा के चेहरे पे कई रंग आकर गुजर गए। मैं अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने आई हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तान की वो सारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ गई जिनके तुम दीवान सुनाती थी कि बाहर की हर यूनिवर्सिटी से बेहतर है? मैं थोड़ा चेंज चाहती थी, बस इसलिए यहाँ आ गई। क्या तुम मुझे जिज कर रहे हो? वो बेजारी से बोली। वेटर आया तो एलिजा ने हॉट चॉकलेट के साथ स्नैक्स मंगवाए। सब ठीक है? एलिजा का लहजा बहुत रूखा सा था, इसलिए अयान को पूछना बनता था। कुछ ठीक नहीं है, वो थके हुए लहजे में बोली और लैपटॉप बंद कर दिया। मसलन? उसने अपनी प्लेट कदरे दूर खिसकाई। तुम्हें रूहान ने कुछ नहीं बताया? एलिजा ने पूछा। किस बारे में? वो एकदम संजीदा हुआ। हबीब के केस के बाद इससे इसकी रूहान से बात नहीं हुई थी और इस वाक़े गुजरे 2 हफ्ते हो गए थे। मेरे पाकिस्तान छोड़ने के बारे में? तुमने पाकिस्तान छोड़ दिया? मैं मर के भी यकीन ना करूं, उसने बेयकीनी से कहा। लेकिन आज इसे यकीन एलिजा वाकई कुछ चुप चुप सी लग रही थी। मैंने रूहान को भी छोड़ दिया है। एलिजा को अंदाज़ा हो चुका था कि अयान अभी तक कुछ नहीं जानता। इसे ही सब कुछ बताना होगा। वो 3 हफ्तों से अमेरिका में थी और वो जानती थी कि ये खबर रूहान के कदमों तले से ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी थी। इसकी बात पर अयान बहुत ज़ोर का हंसा। तुम बहुत फ़नी हो एलिज़े, यह जोक बहुत अजीब था। मुझे हंसी आ रही है। मैं संजीदा हूँ अयान, वो सख्ती से बोली। दूर होने का मतलब ये नहीं कि एलिज़े कि मैं स्टूपिड हो गया हूँ। तुम और रूहान मर तो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तुम्हें भी मेरी तरह झूठ बोलना नहीं आता। वो हंस रहा था। इसका हंसना बनता था, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि वो यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन इसके हंसने के दौरान एलिज़ा बहुत संजीदगी से इसे देखती रही। इसके चेहरे पर रूहान का गुमान हुआ था। वो भी जब इतनी दिलकशी से हंसता था तो उसे बहुत भला लगता था, लेकिन वो रूहान नहीं था। इसके पूरे वजूद पर एक सकूत सा तारी हो गया था। रूहान अब नहीं था इसके साथ। वो पिछले 3 हफ्तों से दिमागी जंग लड़ रही थी। इसे रूहान से मोहब्बत नहीं है और ख़ुद को ज़हनी मरीज़ समझने लगी थी। अंगूठी उतार कर किंजा को देने पर इसे खालीपन का एहसास हुआ था, जैसे सब कुछ छूट गया है। लेकिन उसे खुश देखकर वो खामोश हो गई थी। अपनी जगह को भी इसने किसी के लिए छोड़ दिया था। रूहान को इसकी यही बात बुरी लगी थी कि वो किसी के लिए कुछ भी करने को हर वक्त तैयार रहती थी, और वो अब अपनी मोहब्बत को छोड़ चुकी थी। तुम ऐसे किसी दिन मुझे भी छोड़ दोगी? उसने हंसते हुए कहा था। पागल लगती हूँ। इस दिन वो अपना लाहौर वाला फ्लैट किसी को देकर आई थी और इन दिनों रूहान लाहौर में ही था, इसीलिए वो इसके पास आई थी ताकि चंद घंटों के बारे में पूछ ले, चंद जगहों के बारे में पूछ ले। मेरे मामले में हो भी सकती हो, रूहान ने अफसोस से कहा। तो वो बहुत देर तक हंसती रही। आंखों में पानी आ गया। तुम मेरी सांसों में बसते हो। तुम्हें छोड़ूंगी तो मर जाऊंगी। कोई नहीं मरना तुमने मेरे बगैर। अपनी हरकतें चेक करो। मुझ पर भी टैग लगाओगी कि बंदा किराए के लिए खाली है। रूहान ने इसे तंग किया। और किराएदार कौन होगा? तुम किसी से 2 बोल बेबसी का सुनकर ही मुझे सरापा कर दोगी। अयान के कह के फिर वो हाल में वापस आई तो वहाँ रूहान नहीं था। जिसे खुद छोड़ा जाए उसको दोबारा भी खुद पाया जाता है। एलिज़ा की आंखों में आंसू देखकर इसकी हंसी को ब्रेक लगा। एलिज़ा क्या हुआ? अच्छा सॉरी, मैं नहीं हंसता।
वो अपनी सीट से उठकर उसके करीब पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर तुम ऐसा मजाक क्यों कर रही हो जिसका कोई सर पैर ही नहीं है? वेटर आया और खामोशी से अलीज़ा का मंगवाया हुआ खाना टेबल पर सजाने लगा। मैं सच कह रही हूँ, चाहे तो रूहान से पूछ लो। पिछले चंद दिनों से हमारे दरमियान कोई राबता नहीं है। इसको इस कदर संजीदा देखकर वो अपनी हंसी तो भूल ही गया। वो दोनों वेटर की जानिब मुतवज्जो नहीं थे जो वहीं खड़ा था। डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोल रही हो? जानती भी हो? वो नहीं जानता था कि इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। शायद वो जानता नहीं था कि दो प्यार करने वालों के दरमियान तीसरा भी आ सकता है। मैं रूहान से मोहब्बत नहीं करती, वो स्पॉट लहजे में बोली। मैं नहीं मानता, अयान ने दो टोक अंदाज में कहा। हमारे अलग होने में ही बेहतरी है, वो स्पॉट लहजे में बोली। तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? रूहान के पास होगी। और रूहान की? अयान ने वेटर को जाने का इशारा किया है। इसी के पास होगी। किस कदर बचकाना हरकत की है तुमने अलीज़े? मुझे बताओ क्या हुआ है? अभी अलीज़ा कुछ कहती कि अयान का फ़ोन बजा। दोनों ने मोबाइल की स्क्रीन को देखा और दोनों ही अपनी जगह साकित हो गए। नंबर देकर इसने कॉल यस करके स्पीकर पर डाल दी। कैसे हो अयान? वो आवाज़ रूहान की नहीं थी, किसी भी जज्बे से आ रही, ना ही मुतजस, ना पुरजोश, ना ही खुशगवार और ना मोहब्बत भरे अंदाज में। अयान को धचका लगा। उसने अलीज़े को देखा। ऐसे लग रहा था कि वो फिर रोने लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ क्या हाल है? वो अलीज़े को ही देख रहा था। वो रोने लगी थी, शायद रूहान की आवाज़ को मिस कर रही थी। वो नहीं जानता था कि इन दोनों के दरमियान किस बात को लेकर अलैदगी हुई है, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि अलैदगी खुशी से नहीं हुई, बल्कि जुदाई कब खुशगवार होती है। मैं बस ऑफिस में बिजी होता हूँ। आजकल हम नई फैक्ट्री बनाने का सोच रहे हैं। इनफैक्ट प्लान तैयार कर लिया है, सिर्फ जगह का इशू आ रहा है जो जल्दी हम हल कर लेंगे। काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर मैंने तुम्हारे अगले मंसूबे नहीं पूछे, तुम्हारा हाल पूछा है। अयान ने दिलचस्पी से इसकी बात काटी। अच्छा, हाल ये है कि शायान भाई की शादी की शॉपिंग कर रहा हूँ आजकल, कहते साथ ही से खांसी हुई। फिर वो कितनी ही देर खांसता रहा। सॉरी, खांसते करते हुए इसे किसी ने इसे पानी भी नहीं दिया था। अगर उसके साथ होती तो ज़रूर इसे पानी के साथ लेक्चर देती, लेकिन वो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी ताकि रूहान को यह पता न चले कि वो अयान के साथ है। वो इसकी आवाज़ के लिए तरस गई थी। जब वो सुन रही थी तो बिखर गई थी। रूहान, तुम ठीक हो? अयान ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार था, शायद मौसम तब्दील हो रहा है इसलिए। उसने आवाज़ में बशाशत लाने की नाकाम कोशिश की और लापरवाही से कहा। कब से बुखार है? उसने सख्ती से पूछा, और वो जो समझ रहा था कि रूहान इसे खुद बताएगा तो वो गलत था। इसने पिछले 2 हफ्तों से इसे कुछ नहीं बताया था, तो मतलब अब भी इसका बताने का कोई इरादा नहीं था। अयान को खुद ही पूछना था। पता नहीं, उसने गायब दिमागी से जवाब दिया। तुम्हारी डॉक्टर तुम्हारे साथ नहीं होगी, इसलिए लापरवाही कर रहे हो। इसका इशारा अलीज़े की तरफ था, जो कि वाकई इन लोगों की डॉक्टर थी। अयान की बात पर एक लम्हे के लिए वो चुप हो गया। फिर काफ़ी देर बाद उसने कहा, मैं आजकल इस्लामाबाद में हूँ और वो शायद लाहौर में है। मुलाकात नहीं हो पाई इन दोनों में। अलीज़े के दिल को कुछ हुआ और बाकायदा इसका नाम लेने के बजाय वो कह रहा था, तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? फिर तो वो नाराज़ हो गई। यार बिज़ी होता हूँ, वक़्त मिला तो मिल लूँगा। उसने अलीज़े को कसूरवार नहीं ठहराया, उसकी गलती पर पर्दा डाल दिया। अब क्या हर किसी से इसकी बात डिस्कस करता फिरे? मैं तो सिर्फ कॉल करने का कह रहा हूँ। उसने अपनी बात दोहराई। ओह अच्छा, जब फ्री हुआ कॉल भी कर लूँगा। रूहान ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी। सब्र करो, मैं ऐसे कॉल मिलाता हूँ। मैं भी बात कर लूँगा, तुम भी कर लेना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं भी फ्री नहीं हूँ। तुम्हें बताने के लिए कॉल की थी कि शायान भाई की शादी है, तो मोम तुम्हारे आने का पूछ रही थी। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। मोम तुम्हें देखना चाहती हैं, शादी पर आ जाओ। कब तक इन्हें तरसाने का इरादा है? रूहान ने बरवक़्त मौजू बदला। मैं कोशिश करूँगा, तुम आ जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं नहीं आना चाहता। फॉर गॉड सेक अयान, जब कोई मर जाएगा तब भी मत आना। वो चिल्लाया। ठीक है, अभी तो मैं भी नहीं मरा था जो तुमने मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। मसलन क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? तुम फ्री नहीं हो गए, मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी काम ज़रूरी हो गया। हम एक दूसरे के लिए गैर ज़रूरी हो गए हैं। शायान भाई की शादी मेरे ना आने से रुकने वाली नहीं है। तुम लोग इंजॉय करना। उसने बात बदल ली। मोम के लिए आ जाओ। किसी भी बात पर तबसरा ज़रूरी नहीं समझा। इसे जानने में वक़्त नहीं लगा कि अयान सब जानता है। मैं मोम को अपने पास ले आऊँगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, और फैमिली से दूर रहना तुम्हारी चॉइस थी। बेहतर है मोम को बीच में मत लाओ, क्योंकि हम सबको ही इनकी ज़रूरत है। मोम सिर्फ तुम्हारे लिए हम सबको नहीं छोड़ सकती।
نہ جانے کیوں آج وہ بھی تلخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے علیزہ سے تمہارا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے اسے حل کرو، اس نے خاموشی سے مان لیا۔ وہ حل ہونے کی حدود سے آگے نکل گیا ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، کچھ مسائل حل نہیں ہوتے ایان، اور اس ڈسکشن کی طرف مت جاؤ پلیز۔ کیوں مت جاؤں؟ تم خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، بہت زیادہ ول پاور ہے تمہارے اندر، برداشت کی صلاحیت بھی نارمل انسانوں سے زیادہ ہوگی۔ علیزہ کی بے وفائی کا غم بھی خاموشی سے آب حیات سمجھ کر پی لیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب تم مجھ سے کوئی بات چھپاتے ہو۔ پرسنل سپیس کیا دی تم نے خود کو، سوال جواب سے آزاد انسان سمجھ لیا ہے۔ ایٹ لیسٹ مجھے اس قابل تو سمجھا ہوتا کہ پرابلم بتا دیتے، لیکن نہیں، تم تو پھلنے کا بلنے کا شوق ہوتا ہے۔ چلو تم علیزہ کی جدائی کی آگ میں اسی قابل ہو تم۔ مجھے اس ساری بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ایان، وہ ٹائٹ سے بولا۔ ہاں بھائی، جو سگی تھی وہ تو انگوٹھی منہ پر مار کر چلی گئی، میری باتیں نہ بکواس لگیں گی نا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے روحان، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اسٹاپ اٹ ایان، میں کوئی ہمدردی کا لفظ نہیں سننا چاہتا۔ علیزہ سے اشارے کر رہی تھی کہ وہ خاموش ہو جائے، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں ہمدردی کر بھی نہیں رہا، صرف فکر کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتایا میں نے تمہیں؟ کیا بتاتا میں تمہیں؟ ہاں یہ کہ میں الو کا پٹھا ہوں، وہ مجھے بیوقوف بنا کر ملک سے فرار ہو گئی ہے، یا یہ کہ میں اس کے غم میں خود کو ایک دھتکارا ہوا عاشق سمجھ رہا ہوں؟ روحان کام ڈاؤن۔ اس کو احساس ہوا اس نے زیادہ بول دیا ہے، یا روحان کم از کم مفاہمت کے موڈ میں نہیں تھا۔ بس کر دو ایان، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے مسائل خود حل کرو۔ اگر کسی کو میری فکر ہے تو وہ باہر میں جائے، اور تمہیں مجھ سے محبت کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں رشتے میں بھائی ہو، عزت کرتا ہوں، کروں گا، لیکن بھائیوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی تم ایکٹ کرتے ہو۔ شٹ اپ روحان، وہ غصے سے چلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں روحان کچھ ایسا بولے جس کا مداوع نہ کر سکے، اور علیزہ ان دونوں کے اس انداز پر دھڑکتے دل کے ساتھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں کر سکتا میں بکواس بند، تم سب ایک جیسے ہو۔ کسی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہو، تو کسی کے دل سے اترنے کے لیے، کسی کو توڑنے کے لیے بھی محبت کا سہارا لیتے ہو۔ عجیب یار، تم لوگ کسی کو بھی پاگل کر سکتے ہو صرف محبت کے ڈرامے کر کے۔ سچ بتاؤں، اب محبت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ سن لیا تم نے، میں نے تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب کچھ ضروری نہیں سمجھتا، نہ تمہیں بتانا اور نہ کسی اور کو بتانا۔ تم بھی کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور نہ تمہیں آئندہ مجھے یہ جتانے کی ضرورت ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ امپورٹنس رکھتا ہوں۔ مجھے صرف اپنے کام سے محبت ہے، اور جو مجھے ایسے وقت میں چھوڑ رہے ہیں ایان، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ آئی ایم سوری، میں نے صرف تمہیں موم کے بارے میں بتانے کے لیے کال کی تھی۔ خواہ انہیں تکلیف مت دو، وہ چاہتی ہیں کہ تم شیان بھائی کی شادی پر آؤ، باقی تمہاری مرضی۔ اللہ حافظ۔ موم کو کال کر لینا۔ فون جامد ہو گیا، اس کی اسکرین تاریک ہو گئی، ہر چیز جام ہو گئی، یوں جیسے ہر شخص کا وجود برف میں ڈھس گیا ہو۔ نیو یارک شہر میں کارن مائنز اٹالین ریسٹورنٹ کے باہر شیشے سے نظر آتا برف گرنے کا خوبصورت منظر جیسے اب بے معنی ہو گیا ہو۔ بے یقینی تھی۔ علیزہ نے نظریں اٹھا کر ایان کو نہیں دیکھا تھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کر آئی ہے۔ روحان ان دونوں کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو کہہ گیا تھا وہ یقین نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں ساکت سے فون کی تاریک اسکرین کو گھور رہے تھے۔ برف میں جمے وہ خوبصورت دو مجسمے، ارد گرد کی چہل پہل بھی ان دو ساکت جسموں میں ہلچل پیدا نہیں کر سکی تھی۔ وہی شخص کے الفاظ تھے جس سے ان دونوں نے سچی محبت کی تھی۔ محبت اپنی جگہ تھی، لیکن وہ ان کا سب سے مخلص دوست تھا۔ اب وہ اتنا بدگمان تھا کہ ان دونوں کو باہر میں بھیج گیا تھا۔ ایان کے لیے یقین کرنا اس قدر مشکل تھا جتنا کہ ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے 1 انچ میں بھی ہٹانا مشکل ہو۔ وہ خواب میں بھی روحان سے ایسے ری ایکشن کی توقع نہیں کر سکتا تھا، اور آج اس کا مان ٹوٹا تھا۔ ایک روحان ہی تو بچا تھا، اس کے پاس اور بھی اسے بے مول کر گیا تھا۔ جس قدر انڈا اعتبار وہ اپنے بھائی پہ کرتا تھا، روحان پر کیا تھا، آج وہ اس سے اتنا ہی معمولی کر گیا تھا جسے وہ اپنی جان سمجھتا تھا، اور وہ اس کی محبت کو ڈرامہ کہہ کر گیا تھا۔ اسے اپنی باتیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ آج صحیح معنوں میں ایان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا ہو۔ اس پر ستم یہ کہ وہ ڈھیٹ ہو گیا تھا کہ اب کوئی چھوڑتا تھا تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن روحان چھوڑ دے گا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا اور پھر آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو پیوست کیے رکھا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں غالب، بس تھوڑا سا مان ٹوٹا ہے۔
थोड़े से लोग बिछड़े हैं, थोड़े से ख्वाब बिखरे हैं, बस थोड़ी सी नींदें उड़ गई हैं, थोड़ी सी खुशियाँ छिन गई हैं। हुआ तो कुछ भी नहीं गालिब, बस अपना आप गंवाया है। आँखों को बरसना सिखाया है, चाहतों का सिला पाया है। हुआ तो कुछ भी नहीं गालिब, बस किसी अपने ने रुलाया है। अल्लाह इंसान को वहाँ से तोड़ता है जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता, फिर वो इसे बताता है कि इससे सच्चा और मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। ट्रू, डैम इट ट्रू, आई कैन फील इट। इन अल्फाजों को मैं दिल से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी मोहब्बत की थी और मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। वो अपने बंदे को ऐसी तकलीफ़ से गुजार कर भी थाम लेता है जहाँ से वो ख़त्म हो जाता है। जब वो खुद को मारने का सोच लेता है, इंसान खुद के वजूद को जलाना चाहता है, लेकिन अल्लाह थाम लेता है। अल्लाह गिरने नहीं देता। जब दिल से हर एहसास ख़त्म हो जाता है तो इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर अल्लाह बताता है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। इंसानों को मैंने वफ़ाओं के लिए पैदा नहीं किया, वफ़ा तो इंसान के अंदर होती ही नहीं। वफ़ा तो अल्लाह करता है। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी आपको नहीं छोड़ता। इंसानों में वफ़ा नहीं होती। इंसान तो मोहब्बत भी गर्ज के बगैर करता ही नहीं, मोहब्बत में भी गर्ज शामिल होती है। बेगर्ज मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह करता है अपने बंदे से। वो तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन हम उसकी मोहब्बत को पसे पुश्त डालकर बेवफा मट्टी के पुतलों में मोहब्बत तलाश करते हैं। दुनिया की मोहब्बत सिवाय गम के कुछ नहीं देती। मोहब्बत बहुत पाकीज़ा रिश्ता है जो सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होता है। इंसान को तो दूसरे इंसानों से ज़रूरत होती है, इंसानों से मोहब्बत नहीं होती। इंसानों की आदत हो जाती है, मियाँ को बीवी की आदत, बहन को भाई की आदत, बच्चों को वालिदैन की आदत। ये सब आदतें होती हैं जिन्हें हम मोहब्बत कह देते हैं। ये मोहब्बत क्या है भला? बड़ी सीधी सी बात है, मोहब्बत इंसान नहीं दे सकते, इसलिए इसे इंसानों में मत की तलाश करो, थक जाओगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इंसान मोहब्बत नहीं करते, इंसान इस्तेमाल करते हैं। इंसान में अल्लाह ने एक सिफ्त खुदगर्जी की भी रखी है, जिसमें पहले वो खुद का सोचता है फिर दूसरे का। अयान जिस नज़रों से अलीज़े को देख रहा था, इसका दिल किया ज़मीन फटे और इसमें समा जाए और कभी वापस ना आए। वो अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे। अयान की कहर बरसाती आंखों में देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कुर्सी को ढकेल कर वो उठा और लंबे लंबे ढक भरता अपनी टेबल की तरफ चला गया। अयान, मेरी बात सुनो। अलीज़े भी इसके पीछे भागी। इसे बात करनी थी, इसे सब ठीक करना था, कम से कम रोहान और अयान के दरमियान। क्या सुनो डॉक्टर, इस सब के बाद भी कुछ रह गया है? वो शिद्दत से चलाया। वेटर्स इनकी जानिब लपके। प्लीज़ मेरी वजह से तुम लोग आपस के ताल्लुकात ख़राब मत करो। हमारी ज़िंदगी में ये पहला मौका है लीज़े। इतनी सख्त बातें वो सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा था। मैंने क्या गलती की जो वो मुझे इतनी सुना गया? सिर्फ तुम्हारी वजह से इसका ऐसा रवैया था। अब भी खुश हुआ उसे छोड़कर वो सख्ती से कह रहा था। बेटा कुछ कह रहा था लेकिन वो सुन ही कहाँ रहे थे। सब्र करो यार। वो उर्दू में ही बेजारी से बोलकर इसे जाने का इशारा कर रहा था। अलीज़े ने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। नहीं हूँ खुश, मैं नहीं खुश हूँ इसे छोड़कर। उसके लहजे में नमी थी और वो जैसे थक कर चलाई थी। अब अगर तुम मुझे एतबार के काबिल समझती हो तो कुछ बताओगी? अयान ने नहायत सर्द महरी से पूछा। इसे ही दोस्ती का मान रखना था और एक बार फिर अयान सिकंदर झुक रहा था। अयान, मेरा यकीन करो, मैंने सिर्फ रोहान के लिए रोहान को छोड़ा है। इसने अटक अटक कर अल्फाज अदा करना शुरू किए। आखिर ऐसा क्या हुआ था? तुमने मेरे भाई हो इतनी बड़ी सज़ा दे डाली। अलीज़े, वो इसे गौर से देख रहा था और फ़िलहाल इसका अंदाज़ बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। अलीज़े वापस अपनी टेबल की तरफ इशारा किया कि बैठ के बात करते हैं, तो वो भी संजीदगी से चलता इधर बैठ गया। इन दोनों के नॉर्मल होने पर वेटर भी खफा से मुस्कुराता वापस चला गया। वो अपने फ्लैट पर रोती हुई पहुंची थी। इससे रूहान की बातें गलत फहमी लग रही थी, लेकिन वो सोच रही थी अगर वो सब बातें गलत फहमी ना हुई तो वो किंजा को कैसे माफ़ करेगी जो इसकी पीठ में छुरा खोंप गई थी।
दरवाज़ा खुलने से पहले उसने अपने आंसू साफ कर लिए और संजीदगी से खड़ी रही। फ्लैट का दरवाज़ा किंजा ने खोला था और उसने चहकते हुए पहला सवाल सिर्फ यही किया था कि रूहान माना कि नहीं। अलीज़ा ने खुद को काबू में रखा और अंदर आते हुए कहा, हाँ किंजा। इसकी बात बेतहाशा खुश हुई। देखा वो कितना अच्छा है, किसका भी दिल रख लेता है। लेकिन आज रूहान ने मुझे और भी बहुत कुछ कहा। वो भी किंजा के पास बैठ गई। क्या कहा? वो पुरजोश अंदाज में पूछ रही थी। वो पर्सनल बात है, तुम्हें क्यों बताऊं? अलीज़ा, मैं रूहान के बारे में सब जानना चाहती हूँ, प्लीज़ बताओ क्या कहा उसने। अलीज़ा ने ये लहजा, ये तजस्सुस पहली मर्तबा नोट किया था। पहले किंजा पूछती थी और वो अच्छे बच्चों की तरह बताती थी। अलीज़ा के अंदाज में न चाहते हुए भी तलखी आ गई थी। उसने कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये अल्फाज अदा करना इसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। इसकी बात पर जिस तरह किंजा का चेहरा खुला था, इसके अंदर अच्छे दिल ने उसे रूहान को किंजा के लिए छोड़ने का फैसला करवा दिया था। और अलीज़ा ने ठहरी सदा की एहसानमंद लड़की, तुम मजाक तो नहीं कर रही? वो तुमसे मंगनी कर चुका है, फिर वो मुझसे मंगनी तोड़ देगा। पहले तुम बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं? अलीज़ा, वो तुम्हारा फियांसी है। मतलब तुम कैसे अपने मंगेतर को इसे समझ नहीं आ रही थी कि रोए या हंसे। वेल, ये रिंग हमारी मंगनी की अलामत है, हमारी मोहब्बत की नहीं। तुम बताओ, इससे मोहब्बत करती हो? दिल में कुछ टूटा था लेकिन उसे समेट लिया। इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। रूहान ने खुद तुमसे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। किंजा ने फिर पूछा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती क्या? और वो गौर किंजा को देखते हुए पूछ रही थी। दिल ने कहा था वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं रूहान से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है, राइट? वो संजीदगी से कह रही थी। तुम अब मुझे सिर्फ सच बताओगी, तुम कब से इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो? मैं, अलीज़ा, सिर्फ सच। वो उठ खड़ी हुई। सॉरी अलीज़ा, बुरा मत मानना, लेकिन हम दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। व्हाट द हेल? कौन दोनों? अलीज़ा के चीखने पर किंजा भी खड़ी हो गई। मैं और रूहान। अलीज़ा ने गहरा सांस लिया। और कब से? जब तुमने मुझे उससे पहली बार मिलवाया था तो वो मुझे अच्छा लगा था। मैं उसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई थी। मुझे इस वक्त तुम पर रश्क हुआ था कि रूहान जैसा बंदा तुमसे मोहब्बत करता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं सच बोलूं, मैं तुमसे जेलस होना शुरू हो गई थी। वो रश्क हसद बन गया। मैं चाहती थी कि सब कुछ ऐसा हो जाए कि रूहान तुमसे मोहब्बत करने लगे, वो मेरा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैं जब उसे तुम्हारे साथ देखती थी, मुझे तुमसे नफरत होने लगती थी। फिर मैंने रूहान को गलत तरीके से खुद की तरफ माइल करना शुरू किया, लेकिन उसने वाज़िया नहीं होने दिया कि वो मुझसे मुतासिर हो रहा है या वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। अगर तुम कह रही हो कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो प्लीज़ मंगनी तोड़ दो ताकि मैं रूहान एक हो जाएं, क्योंकि वो अब मुझसे मोहब्बत करने लगा है। अलीज़ा आगे बढ़ी और पूरी कुव्वत से किंजा के चेहरे पर थप्पड़ का निशान बना गई। किंजा हक्का बक्का उसे देखती रही। अगर मैं ये मंगनी ना तोड़ूं तो वो बहुत दुखी दिल से बोली, ये जानना तकलीफ दे होता, जिससे आप मोहब्बत करो वो किसी और के नसीब में हो। लेकिन फिलहाल वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली थी, तो मैं रूहान को मजबूर करूंगी कि वो तुमसे मंगनी तोड़ दे। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ से वो गुस्से में बोली, और वो ऐसा क्यों करेगा? अलीज़ा ने इस्तफसार किया। क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है, किंजा बोल रही थी। अलीज़ा के अंदर से बहुत कुछ जुज़-बजुज़ हुई। किसने कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? अलीज़ा ने फिर पूछा। तुमने अभी कहा ना कि रूहान मुझसे मोहब्बत करता है। उसने बेयकीनी से अलीज़ा को देखा। आज वो इसे खुद की दुश्मन समझ रही थी। मैंने ऐसा कब कहा? अलीज़ा ने कतई तौर पर मानने से इनकार कर दिया। अलीज़ा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। वो गुस्से से चीख पड़ी थी। बेवकूफ़? व्हाट? एक बेवकूफ़ इंसान को किसी को कैसे बेवकूफ़ बना सकता है, बताओ तो? वो अब भी संजीदा थी। तुम क्या पहेलियां भिजवा रही हो? अलीज़ा, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाह रही हो? क्यों, क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, और इससे बढ़कर तुम मेरी कज़न थी, मेरी बहनों जैसी थी, जिससे मैं अपना हर दुख, लाइफ का हर मोमेंट शेयर करती थी। अलीज़ा दुख से बोली। मैं रूहान से मोहब्बत करने लगी थी, ये जानते हुए भी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने में क्या बुराई है? ये दिल किसी पर भी आ सकता है। मोहब्बत में इंसान को अपनी हदूद कहाँ याद रहती हैं? उसने अब कदरे लापरवाही से कहा। कितना बेगैरत दिल है जो किसी पे भी आ सकता है।
शर्म नहीं आई किसी की अच्छी पुरसकून जिंदगी खराब करते हुए? वो इसके अंदाज पर तिलमिला गई। वो फलीजे, कौन सी पुरसकून जिंदगी? वो जिसमें तुम्हें मुलाकातें करने के लिए थकना पड़ता है, या इस इंसान के पीछे भागना तुम्हें पसंद है जो तुम्हें घास भी नहीं डालता? वो इसकी जात को इस कदर राजदार समझ रही थी। किंजा, बकवास मत करो, और रोहान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। और अलीजे, बहुत भोली हो। अगर तुम रोहान को बहुत पारसा और नेकमर्द समझ रही हो तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो सिर्फ एक औरत पर गुजारा कर सकता है? उसके आसपास हजारों लड़कियां काम करती हैं अलीजे, और क्या वो सब खूबसूरत नहीं है? शट अप किंजा, शट अप। इसकी पेशानी की रगें उभरने लगी। किंजा की बात मुकम्मल होने से पहले वो इसकी पर चलाई और रोहान के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती थी। अब अगर रोहान के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसके गुस्से की शिद्दत में इजाफा हुआ। तुम मर्दों की साइकी नहीं समझती अलीजे। मर्द एक औरत के साथ एक सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। रोहान मेरे साथ जिंदगी का हर पल गुजार सकता है। मुझे तुम्हारी चीप बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूछो इससे कि अब तक तुमसे निकाह क्यों नहीं किया? अलीजे ने एक लम्हे को चुप हो गई। मैं वजह जानती हूँ, और मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है, और हमें मालूम है कब शादी करनी है। नहीं, तुम नहीं जानती, लेकिन वो जानता है। तुम कितनी दकियानूसी सोच रखने वाली औरत हो। इसलिए वो तुम्हारे साथ शादी करने से पहले खुलकर जीना चाहता है, बल्कि ऐश करना चाहता है। अलीजा को समझ नहीं आई क्यों, लेकिन इसकी बात पर इसके किंजा को एक और थप्पड़ जड़ दिया। किंजा गुस्से से आग बगोला हो गई। मजीद एक लफ्ज नहीं किंजा, वो रो देने को थी। जिंदगी को अचानक बहुत बड़ा झटका लगा था। तुम क्यों चाह रही हो कि मैं रोहान को हासिल करने के लिए कोई गलत कदम उठाऊं? तुम जैसे नीच लोगों से इसी काम की तवक्को की जा सकती है। भला बताओ तो, रोहान को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? अब वो गलत फहमी से मुकम्मल तौर पर निकल आई थी, लेकिन किंजा का दिमाग ठिकाने लगाना चाहती थी। इसके बाद पर किंजा इसे गुस्से से घूरती रही। फिर पुरस्कार से अंदाज में हंसती इसके करीब आई। रोहान को छोड़ दो, इसके कान में तकरीबन सरगोशी की। अलीजे का दिल किया कि वहीं खड़े खड़े इसे शूट कर दें, लेकिन वो अब रोहान की बात मानने का वक्त था। रोहान के लिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, इसने इत्मीनान से कहा, लेकिन इसकी बात पर किंजा कितनी देर तंजिया अंदाज पर इस पर हंसती रही। रोहान के लिए तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। क्या बकवास है ये किंजा? ये बकवास नहीं है अलीजे। अगर तुम रोहान को नहीं छोड़ोगी तो मैं वो सब करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो धमकियां मेरे लहजे में बोली। तुम इस हद तक नहीं गिर सकती, मैं तुम्हें जानती हूँ। अलीजा ने इसकी बात को मजाक समझा। अगर वो मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होने दूंगी। मैं इसे मार दूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करने दूंगी। अलीजा की इसकी बात पर भौंच कर रह गई। इतनी नफरत? तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझसे मोहब्बत करने वाले को मार दोगी? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, और ये नफरत तुम्हारी वजह से है अलीजे। तुमने हमेशा मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे पास हर वक्त बहुत कीमती है, हर चीज़ बहुत कीमती है। तुम्हारे पास ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान मौजूद हैं, बेशक वो थोड़े हैं। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि अलीजे कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दोस्त सबसे अच्छे, तुम्हारा फियांसी तुमसे मोहब्बत करता है। तुमने मुझे हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश की। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारे पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। तुम इस थोड़े में भी खुश हो। मैं तुमसे नफरत करने लगी, इसकी वजह भी तुम हो। किंजा का ये जुनूनी अंदाज वो पहली मर्तबा देख रही थी।